ناظرین آداب، خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ سب سے پہلے خاص بات کی سرخیاں۔ چنئی بنگلورو ایکسپریس دوہرے دھماکوں کی CID جانچ کا حکم، 1 ہلاک 14 زخمی۔ چنئی دھماکوں پر سیاست تیز، مودی کی سیکیورٹی کو لے کر BJP نے مرکز کو بنایا نشانہ، کانگریس کا پلٹ وار۔ عربی فارسی معاملے پر UPSC کی وضاحت، یونائیٹڈ مسلم فرنٹ کو نہیں قبول، فرنٹ جائے گا ہائی کورٹ۔ اور یوم مزدور پر ملک کے مختلف شہروں میں ہوئے پروگرام، لیکن مزدور آج بھی اپنی ہی بنیادی حقوق سے محروم۔ خاص بات کی شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر کے ساتھ۔ چنئی دوہرے بم دھماکہ معاملے میں مرکز نے NIA اور NSG کی ٹیم کو فی الحال روکے رکھا ہے، ان کی روانگی کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ادھر تمل ناڈو کی وزیراعلیٰ جے للیتا نے CID کی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ چنئی پولیس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ دھماکے دہشت گردانہ کارروائی کا نتیجہ ہے۔ ادھر CISF نے ملک بھر کے ایئرپورٹس پر سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ واضح ہے کہ چنئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن پر بنگلورو گوہاٹی ایکسپریس میں 2 دھماکے ہوئے تھے۔ ان دھماکوں میں 1 خاتون کی موت ہو گئی جبکہ 1 درجن سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ اس معاملے میں 2 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔ چنئی ریلوے اسٹیشن پر آج صبح 2 دھماکے ہوئے۔ یہ دھماکے بنگلورو گوہاٹی ایکسپریس میں اس وقت ہوئے جب ٹرین پلیٹ فارم نمبر 9 پر پہنچی۔ ان دھماکوں میں 1 خاتون کی موت ہو گئی۔ معلوم خاتون پیشے سے سافٹ ویئر انجینئر بتائی جاتی ہے۔ ان دھماکوں میں دیگر کئی مسافر زخمی بھی ہوئے۔ دھماکوں سے ٹرین کے بوگی نمبر S4 اور S5 پوری طرح متاثر ہوئے۔ دھماکوں میں زخمی ہوئے مسافروں کو راجیو گاندھی گورنمنٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ جانچ حکام کے مطابق ان دھماکوں کی نوعیت کم شدت کی تھی۔ دھماکوں کی وجوہات کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ جانچ حکام نے ان دھماکوں کو دہشت گرد کارروائی قرار دیا ہے۔ چنئی فورینسک ٹیم نے موقع واردات پر پہنچ کر حالات کا معائنہ کیا اور دھماکوں کی زد میں آنے والی منتشر ضروری اشیاء کو جمع کیا۔ بم انسداد دستہ اور دیگر سیکیورٹی حکام بھی جانچ میں مصروف ہیں۔ ادھر وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے کہا ہے کہ متعلقہ حکام کو اس ضمن میں معاملے کی تہہ تک جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس دوران تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا نے CID کو چنئی دوہرے دھماکے کی جانچ کا حکم دیا ہے۔ وہیں تمل ناڈو کے DGP رامانوجم کا کہنا ہے SIT دوہرے دھماکے کی جانچ کرے گی۔ ریلوے انتظامیہ نے واقعے کے بعد ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں۔ یہ نمبر کچھ اس طرح ہیں: 042535739 اور 04464502416۔ زخمیوں کے رشتہ دار ان نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ اور ماضی کی طرح چنئی دھماکوں پر بھی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ BJP نے نریندر مودی کی ریلیوں کی سیکیورٹی کو لے کر ایک مرتبہ پھر خدشات کا اظہار کیا۔ ادھر کانگریس نے BJP کے خدشات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ دھماکے اس ریاست میں ہوئے ہیں جہاں انتخابات ہو چکے ہیں۔ چنئی دھماکوں نے 1 کی جان لی اور کئی کو زخمی کر دیا۔ موقع ہے متاثرین کے تئیں اظہار ہمدردی کا، لیکن سیاسی جماعتیں اسے بھی انتخابات میں بھنانے کی کوشش میں جٹ گئی ہیں۔ اپوزیشن BJP مرکزی حکومت پر سیکیورٹی کے تعلق سے غیر سنجیدہ ہونے کا الزام عائد کر رہی ہے۔ BJP کے مطابق انتخابات کے دور میں شرپسند ماحول کو بگاڑنے کی کوشش میں جٹے ہیں اور مرکزی حکومت لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ BJP نے ایک بار پھر نریندر مودی اور ان کی ریلیوں کو دہشت گردوں کے نشانے پر بتاتے ہوئے حکومت سے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ There were enough indications that forces inimical to India, forces which are trying to create disharmony in India, have remained active and would remain active through the election process. Not only were we very concerned about the safety and security of BJP rallies, Shri Narendra Modi ji's rallies,
And the threat perception was something which we were worried about. We did highlight it to Shri Sushil Kumar Shinde. कांग्रेस ने बीजेपी के खदशात को मुस्तरद किया है। This is a blast in Chennai. Tamil Nadu elections were completed on the 24th of April. There is no rally of Sri Narendra Modi at Chennai. तमिलनाडु की अपोजिशन जमातें डीएमके और डीएमडीके ने जयललिता हुकूमत को नज़्म-ओ-नस्क कायम रखने में नाकाम करार दिया है। रेलवे के ममलिकती वजीर आधीर रंजन चौधरी ने भी रियासती हुकूमतों को रेलवेज की सिक्योरिटी पर ध्यान देने को कहा है। आधीर रंजन के मुताबिक मुल्क के तूलो अर्ज में फैले हुए रेलवे के वसी नेटवर्क को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करना महकमे के लिए मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके में गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हुई हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली स्वाति चेन्नई में टाटा कंसल्टेंसी कंपनी में काम करती थी। छुट्टी के पेश नजर घर जाने के लिए स्वाति चेन्नई से गुवाहाटी एक्सप्रेस में सवार हुई और बदकिस्मती से ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में 2 मामूली बम धमाके हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस जैसे ही चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंची, ट्रेन की बोगी नंबर S4 और S5 में 2 बम धमाके हुए। इब्तदाई जांच के बाद तहकीकाती अफसरों ने बताया कि पहला धमाका बोगी S4 में हुआ। इस धमाके में गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वाति हलाक हो गई। स्वाति अपने घर पहुंचने के लिए चेन्नई से बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में सवार हुई थी। स्वाति ने ट्रेन में सवार होने से पहले अपने वालिदैन से फोन पर बातचीत की और दोपहर 1 बजे तक घर पहुंचने की इत्तला दी। ताहम कुछ ही देर के बाद ही टेलीविजन चैनलों पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए धमाकों की खबर नशर होते ही स्वाति के अहल खाना तशवीश में मुब्तला हो गए। रेलवे पुलिस ने स्वाति के फोन की मदद से स्वाति के वालिद को TCS मुलाजिमा की हलाकत की इत्तला दी। स्वाति के वालिदैन का कहना है कि गुज़श्ता साल दिसंबर में स्वाति को मुल्क की बावकार सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत मिली थी। स्वाति की इस कामयाबी से स्वाति के अहल खाना में खुशी की लहर थी, लेकिन इन धमाकों में स्वाति की हलाकत ने अहल खाना की खुशियों को एक ऐसे गम में तब्दील कर दिया जिसका मदावा नामुमकिन है। महलुक स्वाति के अहल खाना को रेलवे ने 1 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। वहीं दूसरी जानब तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता ने भी स्वाति के अहल खाना को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। बम धमाकों में शदीद तौर पर जख्मी होने वालों को रेलवे और रियासती हुकूमत की जानिब से 50-50 हजार रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया गया है, जबकि मामूली तौर पर जख्मी अफराद को 25-25 हजार रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। इन धमाकों पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया ने अफसोस जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुजफ्फरनगर फसदात के 4 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आई है, जबकि दीगर 2 मफरूर मुलजिमीन की जायदादों को कुर्क कर लिया गया है। गुज़िश्ता साल हुए फसदात के दौरान भवाडी गांव में कत्ल और तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन के नाम ओमपाल, सचिन, लाला और बाला है। इस दौरान फसदात में मुलविस दीगर 2 मफरूर मुलजिमीन की जायदादों को भी कुर्क कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मकामी अदालत की हिदायत पर मफरूर दोनों मुलजिमीन जसपाल और सतिंदर की जायदादों को भी कुर्क किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ कस्बों भवाडी, फुगाना, कुदबा और मोहम्मदपुर में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के दर्जनों मुलजिमीन अभी भी मफरूर है और अदालत ने मुतालिका मुलजिमीन की जायदादों की कुर्की के अहकामात जारी कर दिए हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अरबी फारसी जबानों को IPS IAS इम्तिहानात से निकाले जाने पर UPSC की जानिब से दी गई वजाहत को यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने मज़ाक़खेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। फ्रंट के सदर और दिल्ली हाईकोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल करने वाले शाहिद अली एडवोकेट ने कहा है कि इस सिलसिले में जल्द ही दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
میں پہلے بھی ایک بار بول چکا ہوں کہ کچھ لوگ صحیح نہیں ہیں اور کچھ لوگ بی جے پی مائنڈ کے لوگ ہیں جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے عدالت سے ہم مانگ کرتے ہیں, عدالت ہی ایک ذریعہ ہے, نیالیہ ہے جو اس کو نسبت جانچ کر سکتا ہے, اور جو بھی اس کام میں عربی فارسی میں جو جنہوں نے بیان لگایا ہے وہ سامنے آنا چاہیے پورا. کر سکتی تھی. کیا یو پی ایس سی کا یہ آرڈر یو پی ایس سی کو خود کو کینسل نہیں کرنا چاہیے؟ یو پی ایس سی نے اس بارے میں کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے. ایک طرح سے یہ آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈر کا وائلیشن ہے. بہرحال لیکن اس میں یو پی ایس سی نے جو ایک جواب دیا ہے وہ بڑا عجیب جواب اس نے دیا ہے, اور مجھے بہت زیادہ اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان زبانوں کو ہم نے نہیں نکالا ہے بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے نوٹیفائی کیا ہے. اور اب بات کریں گے مے ڈے کی. ہمارے ملک میں دیگر کئی اہم مسائل کے ساتھ ساتھ مزدوری اور بیکاری بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ملک کے مختلف شہروں میں کارخانے بند ہونے کی وجہ سے جہاں مزدوروں کی بڑی تعداد بے روزگار ہے, وہیں ہزاروں کی تعداد میں مزدور اپنے حقوق پانے میں بھی ناکام رہے ہیں. یوم مئی کے موقع پر مزدوروں کے مسائل پر بات تو کی جاتی ہے لیکن در حقیقت ان کا کوئی پرسان حال تک نہیں ہوتا. خاص رپورٹ. کولکتہ جیسے بڑے شہر میں نہ صرف مقامی بنگالی بلکہ ملک کے مختلف ریاستوں سے آئے لوگوں کی بڑی تعداد آباد ہے, اور وجہ ہے روزگار. اسے صنعتی شہر کہا جاتا ہے یا پھر مزدوروں کے شہر کہے جانے والے کولکتہ میں کئی طرح کے کارخانے قائم ہیں جہاں مزدوری کے لیے دیگر ریاستوں سے آئے لوگ بس گئے ہیں. لیکن روزگار دینے والے اس شہر میں یہی کارخانے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد بے روزگار ہو گئی ہے. بیشتر نے راج مستری کا پیشہ اپنا لیا. ہر روز یہ لوگ کام کی تلاش میں چورنگی لین سمیت شہر کے مختلف مقامات پر جمع ہوتے ہیں. کچھ کو کام مل جاتا ہے اور کچھ دوسرے دن کی امید پر واپس لوٹ جاتے ہیں, اور رہ جاتا ہے ان کے سامنے سب سے اہم مسئلہ روزگار کا. کوئی فائدہ نہیں. ہم لوگ کو دن کماتا ہے دن کھاتا ہے. ہم لوگ روزی ہوگا تو فائدہ ہے, نہیں روزی ہوگا تو بہت مشکل ہے. اس لیے ہم لوگ بازار میں آتا, کبھی کام ملتا کبھی ملتا نہیں ہے, کبھی گھر میں چلا جاتا ہے, کبھی ادھار کر کے کھاتا ہے. اس سال کرانے کا بعد تو اور خرابی کر دیا ہے. پہلے تو بہت چلتا تھا اچھا, ابھی تو 15 دن 20 دن بعد جاتا ہے تو 2 مہینے میں کام ہوتا ہے. کیسے چلے؟ کام کرنا ہے, کیا کام کرنا ہے, روزی روزگار کرنا ہے. ہم لوگ کا بال بچہ پریوار ہے نا, اس لیے روز کام ہوتا ہے, روز کھاتا ہے. ہم چھٹی دن ہم لوگ چھٹی نہیں مانگتا ہے, ہر دن ہم لوگ کو کام چاہیے. جو لوگ کچھ کوئی نہیں کرتا ہے. کیا ریاست میں 34 برسوں بعد آئی سیاسی تبدیلی کے باوجود مزدوروں کا طبقہ کافی مایوس کن نظر آتا ہے. آج چھٹی کا دن ہے لیکن ہم لوگ کو کوئی نوکری چاہیے نہیں ہے. ہم لوگ کھٹے گا تب کھائے گا, نہیں کھٹے گا کھانا. یوم مئی یعنی مے ڈے کے پیش نظر مزدور یونین کی طرف سے پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں. مزدوروں کے مسائل کے حل کے لیے سفارشات بھی دی جاتی ہیں, لیکن مزدوروں کو ان کے حقوق کب ملیں گے, ان کے حالات آخر کب بدلیں گے, اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں. ETV نیوز کولکتہ. یکم مئی کو بین الاقوامی یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے. لیبر ڈے کے اہتمام کے ذریعے مزدوروں پر ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مزدوروں کو ان کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق معاوضہ دلانے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے. لیکن مالیگاؤں جیسے مزدوروں کے شہر میں نہ تو یوم مزدور کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نہ ہی یہاں پاور لوم صنعت میں کام کرنے والے مزدوروں کے حالات جاننے تک کی کوشش کی جاتی ہے. ٹیکسٹائل کے لیے جو یوجنا بناتی ہے وہ مالک کو اپنا سینٹرل آئیڈیا رکھ کے بناتی ہے, اور مالیگاؤں جو ہے اکثر مسلم سماج جو ہے لیبر طبقہ ہے, تو لیبر کو بھی نظر میں رکھ کے کوئی یوجنا بنانی چاہیے. ایک صرف بیمہ یوجنا ہے. اتنے بڑے گاؤں میں 3000 سے زیادہ انشورنس کسی کا اترا نہیں ہے. جہاں 3 لاکھ لیبر ہے وہاں صرف 3,00,000 مزدوروں کا ینترمات کامداروں کا انشورنس اترا ہے. مزدوری 75 روپیہ 70 روپیہ روز پڑتی ہے. ہفتے میں وہ 500-600 روپیہ پڑتا ہے ہم کو. اتنی کم پگار میں ہم لوگوں کو بہت مشکلات پیش آتی ہے. مہنگائی اتنی ہے, گھر کا خرچ ہے, بچوں کی تعلیم ہے, اسکول کا ہے, دوا کھانے کا ہے,
हर चीज पे हम लोग बहुत मुश्किलात से गुजरते हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे इसके बारे में। तो सिर्फ दिन बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जरूरत है जमीनी सतह पे काम करने की। रुक करेंगे दूसरी खबर का। वक्फ बोर्ड के मुअत्तल चीफ ऑफिसर एनडी पठान और उनकी बीवी शहनाज के खिलाफ नांदेड़ के भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज किया गया है। तफ्तीश के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा के इजाफी इमलाक पाए जाने पर यह मामला दर्ज किया गया। इससे पहले एनडी पठान को रिश्वतखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मुअत्तल चीफ ऑफिसर नूर मोहम्मद दोस्त मोहम्मद पठान के घोटालों और खुर्द-बुर्द की एक तवील फहरिस्त का इंकशाफ हुआ है। रिश्वतखोरी के इल्जाम में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद एनडी पठान के करोड़ों रुपए के काले धन का इंकशाफ हुआ। इस इंकशाफ की बुनियाद पर पुलिस ने एनडी पठान के खिलाफ नांदेड़ में एफआईआर दर्ज करवाई है। ये कार्रवाई भाग्यनगर पुलिस ने एंटी करप्शन ब्यूरो के डीवाईएसपी एमजी पठान की शिकायत पर की है। एसीबी अफसर ने वक्फ के मुअत्तल अफसर के काले कारनामों की तफसील कुछ इस तरह बयान की। महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के सीईओ नूर मोहम्मद दोस्त मोहम्मद पठान, इनको रिश्वत लेते समय 29/6/2013 में पकड़ा हुआ था। उनको पकड़ने के बाद उन्होंने ये जो रिश्वत ली थी उनके घर में ली थी, इसीलिए उनके घर की हमने जब उस वक्त तलाशी लिए तो उस वक्त उनके घर में 1,19,82,500 रुपए रोक रकम मिला और ये रकम बहुत ज्यादा था, इसीलिए हमने उनकी ओपन इंक्वायरी की है। एसीबी की जांच के मुताबिक एनडी पठान के नाम पर नांदेड़ के अलावा लातूर, बीड़ और उस्मानाबाद में करोड़ों रुपए की बेनामी इमलाक है। पुलिस के मुताबिक एनडी पठान ने मनकुला और गैर मनकुला असासजात की जो तफसील फराहम की है, इसके मुकाबले इनके पास 3,07,89,000 रुपए की गैर महसूब रकम बरामद हुई है। ईटीवी न्यूज नांदेड़। ब्रेक के बाद खास बात पे एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही मदरसा बोर्ड एक्ट नाफिज किया जाएगा। इस एक्ट को चुनावी ज़ाब्ते अखलाक के खत्म होने के बाद नाफिज किया जाएगा। इस बात की जानकारी मदरसा बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार सोमपाल ने दी। उनका कहना है कि एक्ट के निफाज के बाद आईनी तौर पर बोर्ड की तश्कील अमल में आएगी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 802वें उर्स के मौके पर राजस्थान की वज़ीर-ए-आला वसुंधरा राजे की तरफ से कल चादर पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आला की तरफ से ये चादर रियासत की तामीरात आमा के वजीर यूनुस खान, बीजेपी अक़लीती मोर्चे के सदर अमीन पठान पेश करेंगे। चादर खादिम अफशा चिश्ती की जानिब से पेश की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला का पैगाम भी पढ़कर सुनाया जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का आगाज हो चुका है। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। उर्स तकारीब में शिरकत के लिए दूर दराज से कसीर तादाद में आने वाले ज़ायरीन के लिए क़यामत आम, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी से मुताल्लिक क्या इंतजाम किए गए हैं, इस ताल्लुक से दरगाह कमेटी के सदर उबैदुल्लाह शरीफ से बातचीत की है ईटीवी नुमाइंदे अभिजीत दवे ने। नाज़रीन, आप देखिए ये खास इंटरव्यू। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। के 802वें उर्स का आगाज हो चुका है। आज चांद माह की पहली तारीख है और दरगाह में ज़ायरीनों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरगाह कमेटी सदर उबैदुल्लाह शरीफ साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, ज़ायरीन सुविधाओं को लेकर क्या कुछ इंतजाम कमेटी की ओर से किए गए, इस पर बातचीत के लिए शरीफ साहब सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या बुनियादी सुविधाएं इस बार ज़ायरीन को मुहैया करेंगे? देखिए, पहले तो मैं यहाँ आने वाले तमाम ज़ायरीन को और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के इस 802वें उर्स की मुबारकबाद देता हूँ। और जहाँ तक इंतजामात का सवाल है, दरगाह कमेटी हर साल की तरह इस साल भी जो है जो इंतजामात करते हैं वो पूरे हो चुके हैं। और इस साल थोड़ी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमने
इस चीज़ पे जोर दिया है कि बाहर से आने वाले ज़ायरीन को ठंडा पानी पीने के लिए मुहैया हो। हमने 2 कूलर और मजीद टैप्स लगाए हैं, नल लगाए हैं, जिसमें ठंडा पानी हमेशा आता रहेगा। ये इंतजाम तो यहाँ हो रहे हैं। और गर्मी की वजह से जब ज़ायरीन लाइन में खड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि ज़ायरीन की इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं कि एक तरफ से जाने के लिए और एक तरफ से आने के लिए इंतजामात होते हैं। क्योंकि जब खुद्दाम खिदमत का वक्त होता है, उस वक्त ही सिर्फ दरगाह शरीफ के दरवाजे बंद होते हैं, बाकी तमाम वक्त पे जो है खुले रहते हैं और ज़ायरीन का तांता लगा रहता है। इसलिए ज़ायरीन के पाँव जो है गर्मी में लाइन में खड़े हुए उनको तकलीफ ना हो, इसके लिए हम नीचे कारपेट भी डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक शामियाना वगैरह है, आपने देख रहे हैं गर्मी है, इसलिए सारे दिन जो है ज्यादातर इसमें छांव के लिए हमने शामियाना भी लगवाए हैं। और जहाँ शामियाना बहुत ही खराब हो चुके थे या उनकी मरम्मत की जरूरत थी, ये सारी चीजें भी यहाँ हो चुकी हैं। और प्रशासन की तरफ से भी काफी सिक्योरिटी को लेके जो है उन्होंने सारे बंदोबस्त किए हैं। एक चीज जानना चाहेंगे, ये तो दरगाह के अंदर की व्यवस्थाओं की बात हो गई, दरगाह के बाहर जो विश्राम स्थलियों पर ज़ायरीन ठहर रहे हैं वहाँ से उनको दरगाह शरीफ तक लाने की व्यवस्थाएं और दूसरी जो तमाम व्यवस्थाएं, वहाँ छाया पानी की व्यवस्थाएं किस? देखिए, जहाँ तक विश्राम स्थली कायड़ में जो है, जिसका नाम हमने गरीब नवाज मेहमान खाना रखा है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन ठहरते हैं। ये एक डॉर्मेंट्री जो है जिसमें 4000 तकरीबन ज़ायरीन ठहर सकते हैं। ऐसे ही शेड्स बने हुए हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़ायरीन रहते हैं। 4 टेंट लगे हुए हैं जहाँ ज़ायरीन ठहर सकते हैं धूप से बचने के लिए। मैं समझता हूँ इस बार काफ़ी इंतजामात प्रशासन ने भी वहाँ दरगाह कमेटी से पूछकर अच्छे इंतजामात किए हैं। वहाँ भी पीने के लिए पानी, ठंडा पानी, बर्फ डाल के जो है लोगों को ठंडा पानी भी वहाँ भी हमने इंतजाम किया है। बड़ी संख्या में अकीदतमंद जो हैं वो आस्थाने में पहुँचते हैं। क्राउड मैनेजमेंट को किस तरह से बराबर रूप से निभाया जाएगा? भीड़ बहुत रहती है, उसको संतुलित करना, किसी जगह कोई भगदड़ न हो, कोई अप्रिय घटना न हो। सही बात है, बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ बड़ी अक़ीदतमंद के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देने के लिए आते हैं। हमारी पूरी ये कोशिश है कि क्राउड ज्यादा ना हो। इसके लिए सारे इस रास्ते पे आपने देखा होगा बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि भाई जैसा जैसा लोग आते रहेंगे, यहाँ क्राउड अंदर ज्यादा ना हो। दरगाह शरीफ के अंदर जैसा लोग यहाँ से जियारत करके बाहर निकलेंगे, उसी तरीके से अंदर आते रहेंगे। क्राउड मैनेजमेंट के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई यहाँ एकदम जाम ना हो, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। कायड़ विश्राम स्थली में आपने जो कहा, वहां से यहाँ ज़ायरीन आने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ के उन्होंने बसेस लगाए हैं बड़े ही वाजिब दाम से। हमेशा बसेस खड़ी रहती है, जैसे ही एक बस पूरे लोग बैठ गए वो बस निकलती है और दूसरी बस लग जाती है। वहां से यहाँ आने के लिए काफी सहूलतें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। एक आखिरी सवाल, इस बार उर्स में 2 जुम्मे आ रहे हैं, एक जुम्मा कल है और एक बड़े कुल के दिन 9 मई को रहेगा। बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुम्मे की नमाज उर्स के दौरान अदा करते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम? देखिए, हमेशा जो है हर जुमा को लोग यहाँ बड़ी तादाद में रहते हैं। इस वक्त उर्स का मौका है, तो यकीन बात है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आएंगे नमाज के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, दरगाह शरीफ में कोई ऐसी जगह खाली नहीं होती, हर जगह जो है लोग ज़ायरीन नमाज के लिए आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ ने शामियाना डाल चुके हैं, यहाँ पे पूरी सहूलत होगी लोगों को धूप से बचने के लिए। और यकीन मानिए, जो लोग यहाँ अक़ीदत से आते हैं उनको इस धूप की कोई परवाह नहीं रहेगी, वो इसकी कोई यही नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ और विश्राम स्थली कायड़ में भी जो है जुमा की नमाज के लिए बहुत बड़ा टेंट लगाया है, वहाँ भी जो जुमा की नमाज का इंतजाम किया गया है। तो दरगाह कमेटी सदर अब्दुल्ला शरीफ साहब का कहना है कि ख्वाजा साहब के उर्स में ज़ायरीन को किसी तरह की असुविधा न हो, कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, इसके लिए कमेटी के साथ साथ अंजुमन और जिला प्रशासन की भी पूरी मदद ली गई है। और ख्वाजा गरीब नवाज के 802वें उर्स में आने वाले हर अकीदतमंद की दुआ ख्वाजा साहब कबूल फरमाएंगे। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, ईटीवी न्यूज, अजमेर।